Hello, welcome to the social science class. Now we are going to learn about the chapter on geography, our changing earth. Changing earth, the earth surface keeps on changing. The what we see now, whether it was there in the beforehand, now we'll find the changes. About these changes we are going to learn. Why these changes occurs, what are the factors, what are the agents that are responsible for these changes. This is all about we'll read in this chapter. Now, as on a table you keep some book, as long as the table is constant, the books will be as it is, there will be no change. जैसे ही कि आप बुक्स को खींचोगे, इधर से टेबल को खींचोगे, इफ यू पुल द टेबल्स और मूव द टेबल, द बुक्स में सेटर्ड बिखर जाएंगे बुक्स यहाँ वहाँ. तो changes take place here. Why this change? Because we put force on the table to move the table. So we'll see there will changes in the lithosphere part, for which there will be changing in our earth surface. We'll find the change. Now you can see here the lithospheric plates. Here now the lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. Yeah, the other way you can say the lithosphere is made up of different plates which are known as lithospheric plates. These lithospheric plates, they keeps on moving around. They keeps on moving, but this movement is very slow. They move around slowly, just a few millimeters each year. Why this movement? Because the last chapter you have read, the earth is having three layers. Interior of earth, crust, the crust is lithosphere, then mantle, then core. Core, you find that magma is there, molten magma. It is in the molten condition. When the molten magma moves around, and this movement is in a circular manner, this movement causes change in the surface of the earth. Here is the changes. Some force will be there. Otherwise, when the movement is there, due to some force, the earth's movement are classified on the basis of the forces which cause them. You can classify them into two groups, two categories: endogenic forces and exogenic forces. Endogenic forces means, endo means inside, genic means origin. So which origins inside the earth? Endogenic. Exogenic, exo means outside, genic again origin. So which origins are outside the earth? Here, a number of plates, the lithosphere is broken in two. They move around slowly, just a few millimeters each year. The movement is caused due to the movement of the molten magma inside the earth. The movement of these plates cause changes of the earth. Now here you can find the evolution, this flow chart of
landforms. Earth's movement, endogenic, as I told, endogenic means the force which are put inside the earth. Exogenic, the force which are put outside the earth. So due to endogenic forces, there are sudden forces, sudden changes occurs, and sudden forces they are diastrophic forces also. Your earthquake, sudden forces में earthquake, volcano, landslides are there. Here diastrophic forces में building mountains. Exogenic forces they are erosional and depositional. इरोजन होगा एंड डिपोजिशन भी होगा. Here the forces are river, wind, sea waves, glaciers. These are called agents of denudation. Yeah, agents of gradation. What is gradation? The leveling of Earth's surface. Earth's surface keeps on changing. मतलब somewhere aggradation is there, somewhere degradation is there. That means somewhere erosion is there. That or other place में deposition is there. तो ये forces व्हाट आर द एजेंट्स किसकी वजह से हो रहा है ना. रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, इसमें सारे में मूवमेंट में है. व्हेन दे आर मूविंग देन ओनली इट ऑकर्स. सो मूविंग वाटर. हियर विल सी अबाउट द एंडोजेनिक forces. Tectonic forces are endogenic forces, the forces that act in the interior of the earth. Exogenic forces, the forces that act on the surface of the earth. ये causes है endogenic forces produce slow and sudden movements. Sudden changes cause earthquakes and volcanoes. When there is a sudden change, it causes earthquake and volcanoes specifically. This is volcano. What is a volcano? A vent or opening in the earth's crust through which molten materials erupts suddenly. You can see the crust here below that, the mantle, the red color, that is, this is the vent. This is the vent. You can see. Then here it is the crater. Where it is coming out through vent from the mantle down from the layer, that is molten magma is coming out through this, and it is a crater. And when it comes out solidify हो जाता है, then it's called lava. Molten magma when it is inside the earth, when it comes out it is called lava. तो ये volcano है. Due to volcano sudden it erupts suddenly and changes occur. Then another one is earthquake. When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. Suppose a pile of books are there, you will find one book, you bring it out. What will happen? Others books will started falling. तो earthquakes है, lithospheric plates में move कर रहे हैं, the vibration create करते हैं. These vibrations are called earthquakes. Sometimes it happens. तो ये earthquakes you can see, this is the down inside the earth जो होता है, this is focus point and this is epicenter. This is epicenter. Focus point means where the earthquake occurs. Origin जहाँ से हो रहा है, it is focus points है, उसका on just exactly on that top है epicenter. epicenter में सबसे ज़्यादा फोर्स होता है, ज़्यादा इफेक्टेड होता है epicenter. Then vibration, ये चारों ओर जो white vibrations चला जाता है all this way, and this all started vibrating या trembling शुरू हो जाता है ये सारे एरिया में. और earthquakes कंपता है तो उसमें बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं गिरना शुरू हो जाते हैं. देयर आर मेनी चेंजेस. ऊपर में लेवल में जो है इट स्टार्टेड मैनी डिस्ट्रैक्शंस. तो हियर द एग्जांपल यू कैन सी केस स्टडी. 26 जनवरी 2001 हुआ था. बहुत बड़ा सा एक अर्थक्वेक वाज देयर इन
भुज इन गुजरात, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स देखा हाउ वो शटर्ड हो गए हैं. दिस इज देयर. Yeah. So we must be prepared for the to face the earthquakes. What are the preparedness? Where to take shelter during an earthquake? अगर एक earthquake होगा और earthquake का predictions नहीं हुआ अब तक कि हम जैसे हम वेदर फोरकास्ट करते हैं कि बारिश होगा, साइक्लोन होगा, earthquakes होगा करके predictions नहीं किया जा सकता है. तो जब earthquake होगा हमें क्या करना चाहिए? Where to take shelter during an earthquake? हमारे लिए सेफ स्पॉट क्या है? अंडर ए किचन काउंटर और अंडर टेबल और अंडर डेस्क. उसके पीछे नीचे होने से ऊपर से अगर गिरता है कुछ वो ऊपर रह जाएगा. विल बी सेफ इनसाइड. अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, कोने में वॉल का. देन इट हैपन्स. स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से हम दूर रहेंगे? फायर प्लेसेस, areas around chimneys, windows that shattered including mirrors and picture frames. तो टूट के हमारे ऊपर गिर सकता है, इसलिए इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए. एंड बी प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर होंगे? स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली. ये तो होता है व्हेन वी आर यूनाइटेड. डेफिनेटली हम और सारे को अगर हम अवेयरनेस होंगे, इफ यू आर अवेयर वी कैन सेव आवर सेल्फ एज वेल एज अदर्स. एज नाउ कोरोना इज स्प्रेडिंग, तो अवेयरनेस करने के लिए क्या करें? स्टे एट होम, दूरियां बनाए रखो, ये चीज़ें करो, ये अवेयरनेस है. तो अगर हम ये करते रहेंगे तो प्रिवेंशन हो जाएगा, हमारा सेफ रहेंगे हम. बाकियों का भी हम ये मैसेज फैलाएंगे तो बाकी भी सेफ रहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस एंड दिस इज द इक्विपमेंट थ्रू विच वी कैन मेजर द वाइब्रेशन का जो आपको अर्थक्वेक का मेजरमेंट कितने में हुआ है. दैट इज टू मेजर द अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोग्राफ. Now we'll see the exogenic forces. Exogenic forces में आपको हमें कुछ प्रोसेसेस देखना होगा. वन इज वेदरिंग. ब्रेकिंग अप of the rocks on the earth's surface is known as weathering. That happens in one place. देखोगे बिल्डिंग पड़ा है या पुराना टेम्पल्स आप नोटिस किए होंगे, उसमें क्रैकिंग आ गया है एंड पौधे उसके अंदर चले गए हैं, तो ये उसी जगह में धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा, तो उसको कहते हैं वेदरिंग. ये दिस हैपेंस चेंज इन टेम्परेचर की वजह से होता है, मेनली क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर या रेनफॉल, और ये उसकी वेदरिंग का मेन कॉज होता है. तो धीरे धीरे वो ब्रेकिंग अप होगा. ब्रेकिंग अप हो जाएगा, देन जो स्मॉल पीसेस में जब हो जाते हैं द इरोजन स्टार्ट होता है. इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक मूविंग वाटर, विंड, ग्लेशियर. तो अपर पार्ट लेयर जो स्मॉल पीसेस हैं उसको अगर कोई पानी बहा लिया या विंड उड़ा लिया ग्लेशियर द्वारा, अगर उसको उठा लिया मतलब ले गया, तो इसे कहते हैं इरोजन. इरोजन के साथ डेफिनेटली देयर विल बी, इरोजन होगा तो इरोडेड मटेरियल, वेदरिंग इन वन प्लेस. इरोजन होगा तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन भी होगा. इरोजन एंड दैट eroded materials will be transported and then it will be deposited. In process में three processes are working: erosion, transportation and deposition. Now we'll see work of a river. Here you see Niagara Fall, waterfall. तो ये रिवर का काम है. Now let me tell you the course of river. नदी के जो पथ है दैट वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स.
One is upper course, middle course and lower course. अपर कोर्स नॉर्मली माउंटेन या हिली एरिया में है. मिडिल कोर्स आपको प्लेन सरफेस में जो आ जाता है मिडिल कोर्स. लोअर कोर्स व्हेन इट रीचेस नियर द ओशन या सी, उसे हम कहते हैं लोअर कोर्स. जैसे ह्यूमन आदमियों के हमारे होता है ना, जैसे बचपन है, देन जवानी है, बुढ़ापा है. तो रिवर अपर कोर्स में ज़्यादा उछलती कूदती आती है. स्पीड फ्लो ऑफ द वाटर इज़ मोर देयर. एज द स्टीप वैलीज में बहते हुए आते हैं, उछलती कूदती कहते हैं इट कम्स. एंड देयर इरोजन वर्क इज मोर इन द अपर कोर्स. तो इन अपर कोर्स दे डेवलप्ड आई शेप्ड वैली, कैनियन या महाखंड जिसे कहते हैं, या गर्ज, और वी शेप्ड वैली. नॉर्मल शेप वी शेप्ड है. एंड नॉर्मल इरोजन जो होता है, नॉर्मल ये है वाटरफॉल. देर आर स्मॉल, ये तो लार्ज वाटरफॉल जैसे नायग्रा फॉल्स बहुत बड़ा है. छोटे छोटे भी आप देखोगे रेपिड्स, स्मॉल वाटरफॉल्स, उसको रेपिड्स कहते हैं. तो मेन है वाटरफॉल. व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल. जहाँ पे हार्ड रॉक्स होंगे पहले, देन सॉफ्टर रॉक होगा. तो ये हार्ड रॉक्स, यार यू कैन सी हियर हार्ड रॉक्स आर देयर, ये, एंड देन ये पूरा, और देन नीचे है सॉफ्ट रॉक्स, सॉफ्टर. उससे तो द वाटर क्या करेगा, इट विल इरोड द सॉफ्टर वंस. हार्ड वाला ऊपर लेवल जो है रॉक्स, उसे इरोड नहीं कर पाएगा. तो क्या होगा, वो एज इट इज़ रहेगा. नाउ फ्रॉम द अप इसको इरोड करके वो जंप करेगा नीचे. एंड दैट प्रोसेस इज कीप्स ऑन हैपनिंग. तो ये तो एक दिन में नहीं बनता है वाटरफॉल. ऐसा नहीं कि हम आज देखेंगे कल बन जाता है. छोटे छोटे वाटरफॉल्स हम देख सकते हैं पहाड़ी एरिया में ड्यूरिंग द रेनी सीजन. इफ यू कैन गो द माउंटेन एंड हिली एरियाज, यू कैन फाइंड आउट. बारिश जब होता है थोड़े लार्ज वाटरफॉल जिसे हम कहते हैं, दैट टुक इट लॉन्ग टाइम टू फॉर्म. ये जो चेंजेस होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस नॉर्मली सडन होते हैं, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं स्लो चेंजेस होते हैं. ये चेंज नॉट इन 1 और 2 days या ईयर्स टुगेदर में होते रहते हैं. तो ये हुआ वाटरफॉल. देन द रिवर एंटर्स द प्लेन एरिया, मिडिल कोर्स जिसे कहते हैं. मिडिल कोर्स में ज़्यादा उसका फ्लो थोड़ा धीमी हो जाएगा. धीमी हो जाने से व्हाट विल हैपन, कुछ जहाँ वो सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा उसको इरोड करेगा, तो स्ट्रेट नहीं होगा, उसको फोर्स कम हो जाएगा, जब वो टेढ़े मेढ़े होगा. इट स्टार्ट्स एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स known as minders. ये जो लार्ज, यू कैन सी ऑल दिस इज वन मिंडर, दिस इज वन मिंडर. ये जो मोड़ है, दिस टर्न्स, ये है, दिस आर कॉल्ड मिंडर्स. सीधी सी बात है, नदियों की मोड़. नदी जो मोड़ लेते हैं, टेढ़े मेढ़े होके बहते हैं, वो जो मोड़, उन्हीं को कहते हैं द बेंड्स नोन एज मिंडर्स. तो ये प्लेन सरफेस में ज़्यादा होता है. अपर पार्ट में, अपर कोर्स में ज़्यादा इरोजन का काम होता है. देन ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही रहता है. इरोडेड मटेरियल डेफिनेटली विल ट्रांसपोर्टेड. एंड मिडिल कोर्स में इरोजन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी, और कहीं कहीं डिपोएशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ा हो जाते हैं रिवर्स का जो बेड, और रिवर वैली चौड़ा हो जाता है, और ये मोड़ ले लेते हैं, काफ़ी मोड़ आ जाती है. तो ये मोड़ों को कहते हैं, दिस बैंड्स ऑफ द रिवर आर नोन एज मिंडर्स. ना सर्टेन टाइम्स ये मिंडर्स क्या करते हैं, व्हेन ड्यू टू अ लॉन्ग प्रोसेस में, लॉन्ग डेज, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, द मिंडर लूप्स जो हैं कट ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द रिवर. मेन रिवर से सपोज ये कट ऑफ हो गया, देन ये जो है एक लेक सा, झील सा बन गया, सेपरेट हो गया. नदी का मोड़, नदी का रास्ता और दूसरे कहीं चला गया, इट्स वो रिमेन्स एलू. ये जो दिया गया है, हियर इट इज दिस वन.
तो ये ऑक्सबो लेक, ऑक्स का बो शेप के होता है इसलिए ऑक्सबो लेक कहते हैं। जो नीचे ऑक्स का जो क्या कहते हैं वो पैर का जो नीचे, तो ऑक्सबो लेक कहा जाता है। नॉर्मल फॉर्मेशन जो होता है ये फ्लड प्लेन्स। एट टाइम्स रिवर्स ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। ज़्यादा बारिश होने से विल फाइंड जो उसकी नदी जो जहाँ बहना है उसके ऊपर आ गया, ओवरफ्लोज हो गया। दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। पानी बह के नेबरिंग एरियाज में फैल गया। तो नेबरिंग एरियाज में जो आ जाएगा, अब फ्लड के टाइम में पानी देखे होगे थोड़ा सा रेडिश कलर का कैसे होता है, तो उसमें सेडिमेंट्स होते हैं। ये जो सेडिमेंट्स हैं जब ऊपर चले जाते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं। इट डिपोजिट्स layers of fine soil या sill and other materials called, इसको क्या आता है सेडिमेंट्स या अलूवियम भी उसे कहा जाता है, along its banks। तो साइड में ये जो यू कैन सी द ये जो साइड ग्रीन ग्रीन ये जो दिया गया है इस साइड ये है रिवर प्लेन्स। ये सारे नदी जब बाढ़ आती है कहते हैं हम, तो दे फॉर्म द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स के साइड में ये जो लेवीज लिखा गया है देखो ये ऊंचा है। दिस पिक्चर आई विल अदर पिक्चर आई विल शो दैट इज क्लियर होगा। ये यू कैन सी हियर द फ्लड प्लेन्स, हियर एरो मार्क दिया गया है फ्लड प्लेन्स, देन हियर द लेवीज। ये जो ऊंचा है ये पोर्शन जो है ये लेवीज है, लेवीज। देन दिस इज द नॉर्मल landforms formed by river in its middle course. Then the river enters near the comes near the mouth of the river, इसे कहते हैं near the sea. As the river approaches the sea, उसके पास काफ़ी sediments हो जाते हैं। The speed of the river या the river flow का डिक्रीज हो जाता है, स्लोप भी कम हो गया, उसके पास सेडिमेंट्स भी बहुत हैं, तो धीरे 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 उसका स्पीड जो है फ्लो ऑफ द रिवर स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज होने में क्या होगा, रिवर आगे जो थोड़ा सा हार्ड रॉक मिला उसे इरोड नहीं कर पाया, नाउ इट्स ब्रेक्स इनटू ब्रांचेस, स्ट्रीम्स अलग अलग डिवाइड हो गया। एज हियर यू कैन सी ये मेन रिवर आ रहा है, हियर इट इज ये स्ट्रीम्स, here you can see जो white white ये सारे ये again here again sorry here again here, these are all streams. These streams are called distributaries. Here डिपोजिशन वर्क ज़्यादा होता है। इन द लोअर कोर्स में डिपोजिशन ज़्यादा होता है, अपर कोर्स में इरोजन ज़्यादा होता है, मिडिल कोर्स में डिपोजिशन एंड इरोजन दोनों काम होता है। यहाँ पे भी नो डाउट वहाँ पे भी डिपोजिशन होता है, लेकिन ज़्यादा जहाँ पे होता है इरोजन, अपर कोर्स में ज़्यादा इरोजन होता है, डिपोजिशन कम होता है। यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा होता है, इरोजन क्योंकि फ्लो कम हो गया, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाने में इरोजन उतना नहीं हो पाएगा जितना अपर कोर्स में होता है। तो ये जो चैनल्स है ब्रेकिंग हो गया, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। So the small rivers which comes out from the main river are known as distributaries. ऐसे पढ़ोगे tributaries. Normally in the upper course, with the main river, one main stream is there. There you will find small streams are coming and joining. The small streams which joins in the small main stream, the small streams small rivers are called tributaries. Tributaries अपना पानी लाके मेन रिवर में डालते हैं। Once they join the main river, they lose their name, their identity खो देते हैं। यमुना is the tributary of गंगा। यमुना आके गंगा में मिल जाने के बाद no more यमुना। But गंगा जब आता है it flows, one branches came, that is Hooghly,
is the branch of, that is distributary. Distributary they take another name. बांग्लादेश के साइड में एंट्री का हो गया, अदर रिवर्स का अदर पार्ट्स, हियर सम ब्रांचेस केम, मेन ब्रांच है हुगली, तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, दे विल डिपोजिट्स द सेडिमेंट्स। तो ये जो डिपोजिट्स करेंगे, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स, ये सारे आके समुद्र में मिल रहे हैं, फ्रॉम द ऑल द माउथ्स, ये जो है दैट इज कॉल्ड डेल्टा। जो लैंडफॉर्म बन रहा है यहाँ पे, दिस फॉर्म इज नोन एज डेल्टा। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स डेल्टा। ट्रायंगल शेप में बन रहे हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा का मीनिंग है ट्रायंगल शेप में। तो ये गया आपको वर्क ऑफ रिवर। यू कैन सी लैंडफॉर्म्स formed by river, waterfall, meanders, oxbow and BOW, oxbow land, floodplain, levees, delta. These are some of the landforms formed by river. Now we'll go work of sea waves. Sea waves भी they are in movement. Waves आते रहते हैं, तो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। आप देखे होंगे व्हेन यू आर गोइंग टू सी, ऑब्जर्व करते होंगे वेव्स आते हैं, आके टकराते हैं। इसीलिए उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कहीं कहीं आप देखोगे उसको रॉक में बांधा गया है, क्योंकि वो इरोड करके ले जाते हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स एट द रॉक नियर कोस्ट। तो कभी कभी क्या होता है, कोस्ट में अगर हार्ड रॉक है, उसको ड्रैशिंग कर रहे हैं, तो इरोड करके होलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स। ये जो होलो लाइक केव्स यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड सी केव। गुफा जैसे बन गया, उसको उतना पर्सन वो इरोड किया, तो ये सी केव्स, एज इट इज मेड बाय सी, दिस इज नोन एज सी केव्स। क्रेक डिवेलप्स, दिस बिकम स्लोली क्या होगा, ये कंटिन्यूसली वही सी जगह में अगर इरोड करता जाएगा, अब किसी को इरोड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, देन इट बिकेम लार्जर्स हो जाएगा। देन लार्जर होने के बाद क्या होगा, धीरे 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 वो पूरा केव्स को इरोड करके आर पार कर देगा। एज यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे जो है यू कैन सी आर्क शेप में है पूरा। वी कैन सी द वाटर दैट साइड ऑल्सो, यहाँ पे आधा में है, तो ये केव है, केव पूरा इरोड होके चला गया। नाउ इट इज अ सी आर्क। नाउ अनदर पिक्चर सी आर्क आई कैन शो यू, दिस यू कैन सी, दिस इज द सी आर्क, दिस इज ऑल्सो मेड बाय सी। तो सर्टेन टाइम्स ये जो आर्क अगर यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा ये पोर्शन यहाँ से, तो ब्रेकिंग होके क्या होगा, स्टक बनेगा। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, ये जो रूफ है वो ऊपर जो रूफ है दैट विल ब्रेक, अगर ज़्यादा इरोड होगा तो फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट। ये जो देख रहे हो दिस इज द शेप है, खाली वॉल्स ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा। द वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक। स्टैक इट इज रिटन हियर, यू कैन सी स्टैक। वो केव आर्क हो गया, पहले केव होगा देन आर्क हो सकता है, देन पूरा ज़्यादा इरोडेड होंगे, आफ्टर मोर इरोजन देन यहाँ से कट हो जाएगा, देन इट बिकम ए स्टैक एज हियर इट इज। इतना कितना हो गया है ना, अगर यहाँ से इरोड होके इफ इट विल बी कट हियर से, तो ये अलग हो जाएगा, स्टक। देन सी क्लिफ, द स्टीफ रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली। यार यू कैन सी ये जो ये राइजिंग पूरा स्टीफ है, पूरा स्टीफ, ये द स्टीफ रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। ये सी क्लिफ है, you can notice here it is. So another is there sea beach। ये तो नॉर्मली हम बीच में जाते हैं,
पुरी बीच, चांदीपुर बीच, एवरी प्लेस में एक एक बीच, हर जगह में समुद्र के हर किनारे में बीच नहीं होता है. सम प्लेसेस द इरोडेड मटेरियल्स आर डिपोजिटेड बाय द ओशन. तो ये जो है बालू, ये जमा, ये बीच है, ये बालू, ये पूरा, तो वेव्स ला के उसे डिपोजिट किया है जिससे ये बना है बीच. तो समुद्र देखने के लिए नॉर्मली बीच में हम जाते हैं. जहाँ स्टीप है वहाँ पे तो जाके ऑब्जर्व करना मुश्किल है, वी कैन नॉट सिट देयर. तो ये बीच में ही हम जाते हैं, इसको कहते हैं सी बीच. इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द लैंडफॉर्म फॉर्म बाय ओशन. अनदर है लेगून, चिल्का लेगून. यू कैन सी हियर, ये लैंड सैंडबार्स डिपोजिट हो गया, एंड सैंडबार्स यहाँ से डिपोजिट ये हो गया, ये काट ऑफ हो गया, ये ओशन होगा, ओशन से काट ऑफ होके ये सॉल्ट वाटर लेक बन जाता है, चिल्का लेगून से. उसमें रास्ता यहाँ पे बंद कर दिया, कभी कभी ये जो लेगून यहाँ पे अगर जमा हो जाएगा ये लेक हो जाता है. तो वन वे ओपनिंग है लेगून, आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम लेक भी हो सकता है. तो लेगून फॉर्मेशन हुआ है. So landforms created by sea waves, sea caves, sea arcs, stacks, sea cliff, sea beaches. Then we'll see work of ice या glacier normally. These are glaciers. आप गंगा निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर है. तो हम माउंटेन लेवल में अपर पार्ट में ग्लेशियर्स होते हैं. ग्लेशियर्स, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, माउंटेनियस ग्लेशियर्स होते हैं. तो लेकिन माउंटेन्स का मेनली आपको ये में दिया गया. माउंटेनियस जो ग्लेशियर्स हैं, व्हाट आर द ग्लेशियर्स? दे आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस. हम ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, बट जो मेल्ट होता है, नीचे वाला पोर्शन मेल्ट हो रहा है. गंगा नदी का पानी अब देखोगे, वाटर नीचे है बट ऑन द टॉप ग्लेशियर है, तो मूव होता है बट वेरी स्लो मूव होता है. जो उसमें काफ़ी चौड़ा है, यू कैन सी हियर. तो ये यू शेप्ड वैली बनाता है. जितना पोर्शन वो मूव हो रहा है उसके नीचे वाला उसको इरोड करेगा, तो वो फॉर्मेशन होगा यू शेप्ड. किनारे वाले थोड़ा सा गड्ढे हो जाएंगे और ये यू शेप्ड होगा, दिस वे इरोड हो जाएगा. तो ये जो ग्लेशियर्स होंगे, समटाइम्स दे फॉर्म लेक्स. ये ग्लेशियर्स are the slow moving rivers of ice. The landforms formed by glaciers are lakes, glacial moraines. The materials deposited by glaciers such as rocks, big and small, sand and silt. वो भी जमा भी तो करेंगे, तो जमा करेंगे जो हिमोड या ग्लेशियल मोरेन्स उन्हें कहा जाता है. नाउ लेक्स विल सी हाउ इट इज. एज यू कैन सी हियर द ग्लेशियर आर देयर. ये होलो लाइक द कर्व आउट डीप होलो, ये डीप होलो कर्व आउट मूव करके इसको और भी गड्ढा बना दिए हैं. तो गड्ढा बनाने में जो आइस है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा. व्हेन द इट मेल्ट हो जाएगा, इट फिल्ड विथ वाटर एंड बिकम्स लेक. कश्मीरी जो लेक्स होते हैं, दे आर नॉर्मली, ये ग्लेशियर वाला माउंटेन्स एरिया में विल फाइंड दिस आर फॉर्म बाय फॉर्म बाय ग्लेशियर. ये ओशन में जो लेक बना हुआ है, जो लेगून टाइप का, वो सॉल्ट वाटर होते हैं, बट ये नॉर्मली स्वीट वाटर लेक्स होते हैं. तो दिस इज सो लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय glacier. Then will come landforms formed by wind. Three major landforms are there. Form mushroom rocks, rocks in the shape of a mushroom. जाएंगे वो पिक्चर में आप देखोगे. Sand dunes, low hill-like structures of sand and lowest deposits. Very fine and light grains of sand deposited by wind, which are carried by it over very long distances. फाइन नहीं होगा, फाइन और लाइट नहीं होगा तो कैरी नहीं हो पाएगा.
वेरी फाइन फाइन पार्टिकल्स होंगे और लाइट भी होंगे, तो उसको जब तेज हवा आएगा उड़ा के ले जाएगा। और जो लार्ज एरिया मैंने एक वन प्लेस से, जैसे आपको जो अरेबियन डेजर्ट्स पार्ट है वहाँ से उड़ा के लेके जाके जमा कराया है, कहाँ पे, चाइना में। और एक चाइना में लार्ज एरिया में फाइन वो लॉयस्ट डिपॉजिट, वेरी वेरी फाइन फाइन पार्टिकल्स, लॉयस्ट, उसको लॉयस्ट डिपॉजिट कहा जाता है। नॉर्मली दिस लॉयस्ट डिपॉजिट वी फाइंड इन चाइना। यू कैन सी वर्क ऑफ विंड सैंड ड्यून्स। जो विंड नॉर्मली, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, विंड नॉर्मली अपना ज़्यादा एक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। द विंड इज एन एक्टिव एजेंट इन डेजर्ट एरिया। सैंडी होता है डेजर्ट एरिया में, ब्रेकिंग ऑफ सॉइल्स, वर्षा जो नहीं हुआ है तो वहाँ पे वो ज़्यादा, उसका फोर्स ज़्यादा काम करता है इन दोज एरियाज। तो व्हेन विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस से वो उठा के ले आया सैंड, तो कहीं ना जमा करेगा, तो जहाँ कहाँ जमा करेगा, जहाँ पे विंड उड़ा लिया ना, विंड का फोर्स कम हो गया, द प्लेस वेयर द फोर्स ऑफ द विंड विल बी लो, या दैट इन दैट एरिया द सैंड फॉल्स, उस जगह में सैंड गिर जाएंगे। एंड सैंड्स डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स एक बना लेंगे, लो हिल टाइप का, बालू की टीला या बालू की पहाड़ जैसे बनेंगे। ये जो एक एक टीला जैसे, ये जो टीला है यू कैन सी, या ये सारे टीले जैसे, ये है सैंड ड्यून्स। तो डिपोजिट होके पूरा लार्ज एरिया में यू विल फाइंड, डेजर्ट एरिया में यू विल फाइंड दिस सैंड ड्यून्स डिपोजिट हो गया। अनदर है मशरूम रॉक। विंड इरोड द लोअर सेक्शन में ज़्यादा उसमें उसका फोर्स होता है, दिस लोअर पोर्शन वो इरोड होता गया, बट जो अपर पोर्शंस वाइडर रहा, चौड़ा रहा, ये इसको ज़्यादा इरोड नहीं कर पाया क्योंकि ये इसका फोर्स जहाँ था इस जगह में काम किया। द विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, दे आर हैविंग नैरोअर बेस, हो गए ये नैरो हो गया ये, और ये चौड़ा हो गया, एंड वाइडर टॉप। ये जो शेप बना कैसे, अम्ब्रेला या मशरूम जैसे छत, अब मशरूम देखे होंगे, खाते हुए मशरूम्स, तो ये मशरूम शेप का बन गया है, ये टॉप वाला एंड नीचे वाला नैरो है, ये शेप बन गया। सो इट इज़ कॉल्ड मशरूम रॉक्स। तो ये 3 landforms have completed, major landforms, that is sand dunes, mushroom rocks and lowest deposits. So I have completed the work of the landforms formed by river, landforms formed by sea waves, landforms formed by glacier, landforms formed by wind. This much we have undergone now. तो ये आप दिस लैंडफॉर्म्स whenever you go out you can observe certain things. ये जो चेंज, ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं नॉट इन वन डे नहीं, slowly this happens. So now for you the work is there, you can see. Categorize the following features as the erosional or depositional और बाय बोथ। यहाँ जो दिया गया है, फ्लैट प्लेन, सी कैप, मिंडर, मशरूम रॉक्स, मोरेन, डेल्टा, सी बीच, लॉयस, ये वेदर इरोजनल फीचर्स हैं, इरोजन से बने हैं या डिपोजिशन से बने हैं। कैटेगराइज करके आप अपने लिख के विल फाइंड आउट एंड देन विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। ओके, थैंक यू।